मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है 21 में और आज हमारे कॉलेज में हो रहा है टेक्नो मैक्स इवेंट। तो गाइज ये टेक्निकल क्लब की ओर से काफ़ी बड़ी इवेंट करवाई जाती है टेक्नो मैक्स, और इसका प्राइस पूल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गाइज आज अभी हो रहे हैं 11:30 होने वाले हैं और हमारा प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ी देर बाद कि क्या क्या हो रहा है टेक्नो मैक्स में। और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट आए हैं इस बार, क्योंकि 2 बार से कोविड के चलते हमारा टेक्नो मैक्स नहीं हुआ है। तो 2 साल से पेंडिंग था टेक्नो मैक्स, इस बार हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए कि हमें टेक्नो मैक्स देखने का मौका मिल रहा है। और गाइस मैं आपको बता दूं, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देखना ना भूलें और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं 60 प्रोजेक्ट्स आपको दिखाऊँगा। हाँ तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को देखने से पहले @the.y_with_cam को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और लास्ट में देखकर कमेंट करना भी नहीं भूलना है। आपको कमेंट भी करना है ये ब्लॉग का कितना अच्छा रहा और किसका प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या किया हमने कि एक पूरा कमर्शियल सर्किट अगर हम अपनी नॉर्मल डिवाइस से यूज करें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, ठीक है, हम वहाँ से जो है मुझे ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। बाय दिस हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं फॉर अ वाइल, ठीक है। निकाल लो, 4 निकाल लो। We have made a project named DIY Egg Incubator and Canning Apparatus. Generally, we are focusing on Atmanirbhar Bharat because after the COVID era, the government is mainly focusing on self-reliability. Here we are making agriculture is a vast sector, and in agriculture, poultry is one of the major sectors, and nearly 5 million people are directly or indirectly involved in the poultry sector. Of the model will explained by my other team. One bulb and it's a manipulator and here is sensor for temperature. Sensor we just connected the adapter. We have adapter with manipulator, and so we have two in black in and white red in. So we connected the black in with GND in and that red with 12 V in. And we have the bulb for one. And on rating the black marginator of the factory and only real service left for the Hello everyone, greetings to all. So I am Nitesh Kesavani and I have made a project regarding movie recommendation system. So movie recommendation system, first I would like to give a brief introduction about what is a movie recommendation system that I have made.
So, as you have seen online platforms for watching movies or serials like Hotstar, Amazon Prime, etc., etc. So, have you ever seen that those apps have a column regarding recommended movies? So, recommended movies. So, what it is there? The recommended movies basically show the if a user is watching a particular type of movie on a particular genre, then this system will tell the user about other movies having similar genre or the similar ratings which the user gives. So I have made a system in R language. I have preferred R language because it is new in market, and in this project basically the essentials of data analyst have been used at a wide scale, and R language is developed for data analysis only. So I have used R language with several various libraries, I would say, in this project. You can use it. Okay. Good afternoon to all. My name is Abhishek Balana and this is my team Out of the Box. We have created a application that is Prep News. Prep News is basically a note-making system for the news that helps the UPSC or civil services student to make the notes. And this application stores the note in an encrypted form, and also there is a two-way authentication to read the notes. Thanks. My name is Rahul Kumar. I am from BTech CSE third year. I made a project on the topic of curriculum management system. Basically, in this topic, we use the front end for HTML, CSS, Bootstrap, and for backend for use PHP and MySQL. That's all. Thank you. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पुलकित सैनी और हमारा एक प्रोजेक्ट है टेक्नोमैक्स में, जिसमें हमारे जो टीम मेट्स है, जो टीम लीडर है वंशराज और मेरे टीम मेंबर स्वाति गुप्ता, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। बेसिकली हम लोग वर्क करें एक रिसर्च मॉडल पे, जिसकी हमें हेल्प से हम लोग एक कुछ फेस ट्रेन करेंगे। फेस ट्रेन करने के बाद हम लोग उन फेस को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। उनकी हेल्प से हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं हम लोग मास्क अटेंडेंस सिस्टम पर है, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स के बेसिकली बहुत बड़ा हॉल होगा। उसमें अगर 200 स्टूडेंट भी है तो हम लोग चाहते हैं कि 200 स्टूडेंट की अटेंडेंस एट अ टाइम लग जाए। एक की टाइम पे लग जाए। और जो अभी हमारे इस वक्त प्रोडक्ट की एक्यूरेसी है, हम लोग एक टाइम पे अप टू 20 जो फेजेस है वो रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है, और अगर 20 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें हमारी जो फेस रिकॉग्निशन है की एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन हम लोग अभी और मॉडल्स पर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले वर्क करा था वो हार कैस्केड पर वर्क करा था। अभी करंटली हम लोग CNN पर वर्क कर रहे हैं, और हम लोग आगे भी YOLO मॉडल है जिसके पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। उसकी हेल्प से हम लोग चाहते हैं कि जो बहुत सारे फेसेस होंगे एट अ टाइम रिकॉग्नाइज कर ले। इसका जो हमारा फ्यूचर स्कोप रहने वाला है, ये फ्यूचर स्कोप हम लोग काम करना चाहते हैं। जैसे कोई क्रिमिनल होगा, हम लोग उसका फेस अपनी डेटाबेस में फीड करते हैं और वो कहीं पर भी एंटर करता है। सपोज दैट किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एंटर करता है, कहीं पे एयरपोर्ट पे एंटर करता है, ट्रेन पे एंटर करता है, उसका फेस रिकॉग्नाइज हो जाए और वार्निंग जनरेट हो जाए। थैंक यू। Very good afternoon to all present here. I, Himanshu Mishra, with my team members Piyush, Pankaj and Pratibha, is here to present my project today, My College App. It's basically a small Android app, and we are developing it in a Flutter also, so that it can be used in iOS also. The main agenda of creating this app is like our college right now uses the other third-party applications for providing our information, notices and other stuffs, so that we are creating our own app for the purpose of the ERP, or you can say that for the communication purpose. The app is basically consists of two modules, that is one app admin side and one is user side. Admin side module can be used for uploading the notices, ebooks, images, galleries, and all the other informations like faculty information and all. The user app can be used by the everyone, so that which is need to be logged in first, and that can only be done by the official email ID of the college. And then after, it can be used for retrieving all the informations like notices, faculty informations, galleries and notices along with ebook. Thank you. And Good afternoon. Here I am presenting my Technomax project business website. Here I am presenting my Technomax project business website. First of all, I am introducing my team members Aditya,
Abhimanyu and Divesh Chandra. With the support of my team member, we have created our business website using of Next.js, React and Bootstrap with the and React icons. ठीक है. A website should text a primary, mean or growth. It should leverage the business of serving picture business goal for year. The purpose of a website had been tell people about our business. Okay, thank you. Good afternoon everyone, my name is Rishi Varnwal and my teammates Shravan and Nirajan, and here we are presenting a token which name is ASR, whose full name is All Sales in Rupees, and here it's based on blockchain technology which is peer-to-peer connections, and it also have a good execution and take very less time for the exchange from one currency to another currencies or the tokens. Good morning. I am Swapnil Suman and he is my friend Nivas Kumar, and together we have made a game in which there is a plane which has to avoid its obstacles coming in its way, and we have used various concepts in developing it, which includes looping and management of events and importing of sprites and modules and importing of sounds in it. Vitesh Mukherjee and his name is Sojit Ghosh, and we have built a project related to food delivery web application, and our project is mainly made upon HTML, CSS, JavaScript, which is a base part, and we have used frameworks like React.js and Node.js in the front end and the back end part, and also we have used the payment gateway, that is the Paytm payment integration, and we are also working on food delivery and grocery delivery web application stores which are nearby, and we are connecting in one place. That's the main goal of our project. गुड आफ्टरनून. तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बना है माइनर्स की सेफ्टी के लिए. तो इसमें बेसिकली हम 3 एरियाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं. पहला जो माइन एरिया है, दूसरा क्लाउड सिस्टम और तीसरा सर्वेलांस सिस्टम. इसमें ये है कि जो माइन एरिया है वहाँ पे क्या कहते हैं, एक सिंपल मशीन लगी रहेगी जिसमें सेंसर्स एम्बेडेड रहेंगे, जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया या फिर गैस सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर सेंसर हो गया. वो अपनी अलग अलग वैल्यूज़ देंगे अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, और फिर वो जो डेटा है वो क्लाउड पे जाएगा, और क्लाउड का डेटा फिर क्या कहते हैं सर्वेलेंस सिस्टम के पास जाएगा, जैसे कि आप इस ऐप पे देख सकते हैं. और इसके जो अदर एप्लीकेशंस वगैरह हैं, इसका हम मिलिट्री वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर सेंसर वगैरह का इस्तेमाल करके. और प्लस में हम होम ऑटोमेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो है लोगों को बचाना. मतलब अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है या फिर माइन में एक छोटा सा वर्कर है क्यों ना हो, सबकी लाइफ उतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर बन जाता है लाइफ के लिए. काफ़ी दैट्स ऑल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये इस प्रोजेक्ट का नाम है एंटी एक्सीडेंट फॉर स्लीपिंग ड्राइवर्स, एंटी एक्सीडेंट कार फॉर स्लीपिंग ड्राइवर्स. सो बेसिकली इसका पर्पज़ है कि जो ड्राइवर्स नाइट में ड्राइव करते हैं, जैसे कार ड्राइवर्स हो गए या बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर, तो नाइट में ड्राइव करते करते उनको नींद आ जाती है या झपकी लग जाती है. तो उसके लिए हम लोगों ने ये एक डिवाइस बनाया है, ग्लासेस बनाए हैं, जो ड्राइवर पहन सकता है ड्राइव करते टाइम. तो ड्राइव करते टाइम क्या होगा, अगर किसी ड्राइवर को नाइट में नींद आ जाती है या झपकी लग जाती है, तो उसके नींद आने के 5 सेकंड बाद ये जो डिवाइस है ये सेंसर से इस कार को सिग्नल देगा और ये कार 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी. और दूसरा इसमें एक और एंटी एक्सीडेंट सिस्टम है कि मान लो अगर ड्राइवर नहीं सो रहा है और कोई ऑब्जेक्ट रात में सामने कार के आगे अचानक से, तो कार ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी. उसके लिए हम लोगों ने ये अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा रखा है. तो बेसिकली हम लोगों का पर्पज़ यही है कि ताकि ड्राइवर एक्सीडेंट ना हो, बस यही है. थैंक यू सो मच. हमारे प्रोजेक्ट का नाम है लीचिंग प्रूफ गार्बेज डंपिंग यार्ड, और हम लोग हैं सिविल 3rd ईयर के स्टूडेंट्स. दिस इज़ विवेशवान सिंह, आई एम भावेश कुमार, दिस इज़ प्रेम कुमार, दिस इज़ नॉन्ग मैथन चेल्सी. प्रोजेक्ट के बारे में इसमें हम लोगों ने लीचिंग प्रूफ
डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। इसमें जो भी हमारा सिटी से पूरा कूड़ा आता है, इसको हम लोग पहले 3 यूनिट से लेके जाते हैं, जो कि है सेग्रीगेशन, बायोमास एंड कंप्रेशन। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ब्लॉक्स में लाके डिपॉजिट कर देते हैं। अब जो यहाँ पे कूड़ा है लीचिंग ना हो, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इतने सारे लेयर्स लगाए हुए हैं, जिनकी थिकनेस यहाँ पे लिखी हुई है। layers are as follows: concrete, brick, polymer, clay and polymer, and the base level is the ground level. हम लोग यहाँ पे बायोमास से भी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, जो कि थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट के थ्रू होता है, और फिर वो बाकी बाद में सिटी में पूरा ट्रांसफ़र होता है। हेलो, आई एम सिद्धार्थ सिंह, आई एम द लीडर ऑफ माई ग्रुप। ये हमारा ग्रुप है। आज हमारा प्रोजेक्ट ई पोलिंग पे है, जो कि तो हम लोग का टॉपिक है ई पोलिंग, जिसमें हम लोगों ने काम किया है। अभी जो पोलिंग सिस्टम का जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, इसमें कुछ फॉल्ट है। जैसे कि जो मान लो कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, अगर उनको बिहार में आके वोट देना है तो वो आके वोट नहीं दे पाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि वो लोग बाहर रह रहे हैं, तो उससे वोटिंग परसेंटेज कम होता है। एक तो ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग आउट स्कर्ट पे रहते हैं, उन लोगों के लिए पॉपुलेशन पर पोलिंग स्टेशन काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का डेंसिटी कम होता है। तो हम लोग इसको भी मैनेज करने के लिए ये एक प्रोग्राम किए हैं। और इसका एक ये भी मतलब डिमेरिट है कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इंडिया में 2019 में इलेक्शन में 20 लाख फोर्स को मतलब डिप्लॉय करना पड़ा था, जिसके वजह से क्या होता है कि जो रेड कॉरिडोर या फिर से मिलिटेंट एरिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी कवरेज कम होता है और फिर वहाँ पे वायलेंस बढ़ता है। इससे पोस्ट पोल वायलेंस भी बढ़ता है। तो जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है, उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि हम लोग आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर या वोटर आईडी नंबर उसमें डालेंगे, जिससे जो हम लोग का लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी या राज्यसभा कंस्टिट्यूएंसी, उसमें जितने मेंबर खड़े हैं उनका लिस्ट आ जाएगा, और फिर वहाँ पे जिनको हमको वोट देना है वो वोट देंगे, और फिर वो हम लोग सबमिट करेंगे, और फिर इस तरह से वोट भी काउंट हो जाएगा, और मतलब डेंसिटी कम होगा। लोग घर पे ही रह के वोट कर सकते हैं। इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने एक वायरलेस सैनिटाइजेशन रोबोट बनाया है, जो कि हम लोग ब्लूटूथ मॉड्यूल के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। ये किसी भी ऐसे हॉस्पिटल्स में या ऐसे जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स होते हैं, या जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जो हाईली इन्फेक्टेड होते हैं, और उनके पास कोई भी हाउसकीपिंग या हाउसमेट जाना नहीं चाहता है, या मतलब इन्फेक्शन के डर से। जो भी डॉक्टर्स या नर्सेज, मेडिकल स्टाफ होता है, उन्हें तो जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द प्रिकॉशंस एंड द मेडिकल नीड्स, बट जो हाउसकीपिंग होता है वो अवॉइड करता है। तो वैसे जगह पे सैनिटाइज़ करने के लिए हम लोग ऐसे रोबोट्स का यूज़ करते हैं। इनका साइज़ भी कॉम्पैक्ट है, और ये अकॉर्डिंग टू आर कंट्रोल हम लोग इसको कंट्रोल करके एक रूम, एक पेशेंट, एक बेड साइज़ जो भी है, हमारा जो भी एरिया है, उसको कवर करके सैनिटाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आर्डिनो यूज़ किया है, जिसकी हम लोगों ने एम्बेडेड सी पे प्रोग्रामिंग की है थ्रू एनर्जिया, और हमने एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है जो हम लोग का DC मोल करता है। तो हमने ये प्रोजेक्ट में फर्स्टली प्रोग्रामिंग किया है आर्डिनो बेस्ड एनर्जिया सॉफ्टवेयर से। हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एम्बेडेड सी है, जिसके हेल्प से हमने किया है इसे प्रोग्रामिंग, और हम इसे ऑपरेट करते हैं ब्लूटूथ HC मॉड्यूल से, जिसकी बेसिकली नीड ये होती है कि वो शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसकी रेंज होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। बेसिकली हम वो रेंज इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि नेशनल अथॉरिटी की तरफ से वो रेंज फिक्स है ब्लूटूथ के लिए, ब्लूटूथ फ्रिक्वेंसी के लिए, और हम उसे यूज़ करते हैं। एंड उसके हेल्प से हम फॉरवर्ड, रिवर्स, लेफ्ट, राइट अपने प्रोजेक्ट को रोटेट कर सकते हैं एज़ पर आर रिक्वायरमेंट। सो द मेन ऑब्जेक्टिव हमारा इस प्रोजेक्ट का है कि हम इसे हर जगह सैनिटाइज़ कर सकते हैं एज इट रिड्यूस ह्यूमन एसोसिएशन एज मच एज़ पॉसिबल। सो इसे हम फ्लोर और सीलिंग के लिए भी हम सैनिटाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा मोटो है प्रोजेक्ट का। सो थैंक यू। Good afternoon to everybody. This project is for the generation of electricity through the wind pushed out by the vehicles traveling in the road.
In this mechanism, we can see the wind pushed by a vehicle through any road is rotating this wheel of ours, which is wind sails. In the below of this, we have two permanent magnets which are in same pole, so it leviates in the through the pole, and below in the side of that we have separate alternate opposite poles of magnets which produce changing magnetic flux, which next to transfer in this iron cores, which generates EMF, which is further transferred to this battery. In this project, we can use it for the economic generation of electricity for our EV purposes, or the generation of hydrogen by electrolysis and further transfer in fuel cells. And by using this magnetic leviating system, we are reducing frictions by 20% and increasing our power output by 50%. And in this project is made by with 3 and more 2 members which are not here. My name is Priyanshu, Ganga and Priyadarshi, and that's it for us. बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक सिक्योरिटी क्वाडकॉप्टर है, जिसको हमने एक फॉर सिक्योरिटी रीजंस के लिए बनाया है। जैसा कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको थ्रू ट्रांसमिशन हमने किया है एक किट के थ्रू, जो किट का नाम है KK 2.1.5। इसी के थ्रू सारे कंपोनेंट्स हमने एक्टिवेट किए हैं और इसी के थ्रू हमने सारे कंपोनेंट्स को लीड भी किया है, और DC मोटर्स भी हमने यूज़ किया है इसमें, और इसमें प्रोपेलर्स भी लगाया है जिससे हमारे फंक्शनिंग हो सके, और इसमें हमने एक फ़्लाइट कंट्रोल का भी वो दिया है जिससे हमारा जो क्वाडकॉप्टर है वो एक बेसिकली एक रेंज में जा सके और एक रेंज कवर सके, और उस रेंज के थ्रू हम एक प्रॉपर वीडियो फंक्शनिंग कर सके विद ऑडियो ट्रांसमिशन। और इस पे हमने एक वायरलेस फिडेलिटी भी लगाया हुआ है जो हमारे क्वाडकॉप्टर को फ़ोन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं हम एक ऐप के थ्रू। और इसकी जो पूरी कॉस्टिंग हमने एकदम लो लेवल से की है, इसकी पूरी कॉस्टिंग हमने 25 to 3000 के अंदर में किया हुआ है। और एज़ कंपेरिजन टू मार्केट्स ड्रोन ये बहुत ही कंफर्टेबल है और इजी है, और इसकी सर्किट डिज़ाइनिंग भी एकदम इजी है, और इसको हमने रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू कंट्रोलर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको हम फ़ोन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको हमने एक नेम दिया खुद से जिसका नेम है एक सिक्योरिटी ड्रोन फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो एक लेबर के काम को भी घटाता है, और ये बहुत एडवांटेजेस भी है सोसाइटी के लिए, और ये बहुत बेनिफिशियल भी है। दैट्स इट। Hello everyone, this is a sensor object movement robot. This robot follow the movements and follow the object by moving their while sensing their movements. In this robot there is a Arduino Uno and DC motor driver, and there are 2 sensors, ultrasonic sensor and infrared sensor, which sense the movements and object, and there is a servo motor used in this by which the sensor moves to the object, moving objects. That's it. Okay. We are using. Good afternoon everyone. I am Ravi Roshan with my team, having Swastika this side, Saurabh Sulok, MD Nazir, Dhanudhar Tirpura, Gaurav Kumar Pandey and Angam Inchan Tombi. We are working on the project of 3-layer flyover which consists of 3 ways, that is ground way, first floor and second floor. These are mainly for the project of the future to reduce the traffic volume in the cities, to enhance the speed in the traffic. Okay. A very good afternoon to one and all present here. My name is Shama Parveen and I am from BTech EE 4th year, and they are my teammates Rani Kumari and Udit Nath. Our project name is Energy Harvesting through Radio Frequency. Basically, the main motive of our project is the electricity that we are getting, we are just giving. There is no supply in this model, there is no supply used. By the help of the electromagnetic waves,
present in the surrounding, by those electromagnetic waves only we are lighting our devices, we are running our devices. These are the antennas, these are the monopole antennas which are used in the circuit, and this is a Villard circuit. The frequency, the antenna is collecting a frequency which ranges from 120 millivolt to 50 millivolt, and these frequencies are being collected by this Villard circuit, which consists of a series and parallel combination of capacitor and resistors, capacitor and diodes. Basically here we are using unpolarized capacitor and a polarized capacitor. These capacitors, this Villard circuit is storing the energy, and total we have used 20 Villard circuit along with the 20 antennas, and overall energy, overall voltage which we are generating here, we are just collecting these connections in a series, and all the voltages we are getting here. So from here we have used a BJT, which is a bipolar junction transistor, NPN BJT, and this is a transformer which is used to step up the voltage, and these are the appliances which are basically running according to the voltage which they are getting. So if we run this project, so basically its rating, the voltage which it needs is 3.6 volt. If we run, so I would be getting something. See, as we can see, the fan is running, and similarly, if we are running this, the power rating of this is almost high as compared to this. It's almost 3.6 volt and it's 2.6 volt. So if we run this, just a minute. As we can see, our model is working. So basically the main motive of this project is just there is no supply used, just by the frequencies, available nearby. We are just using our appliances by those frequencies only. First of all, good afternoon to all. My name is Shyam Babu Yadav. I am from BTech Civil 4th year, and we are here making the base isolation for earthquake resistance building with our team members, Vicky, KP and Survada and other. So the main objective of the project is to isolate the building, means in the origin in earthquake zone, means earthquake hazard zone. The building was constructed in such a way that they resist the earthquake, and we have used we can use the spring or rubber also, but we are using here spring as an earthquake resistance isolator. And here as I was saying, we have steel plate, PPC, again steel plate, again PPC. There are four. This is the generally the model. It can resist the earthquake of 7 to 8 hectare, and it was cheaper than the general building, which was constructed on the RCC reinforcement. It was cheaper, so we can generally prefer. It was also used in India some place, but generally it was used in the other countries. Okay, thank you. So our project is basically about footstep power generation system, in which we are using piezoelectric transducer as a medium, on which when we step on it, there is EMF generated into the material, and that circulates electric current through the material. So over here, as you can see, as we step onto this plate, the EMF is being generated into this, and the voltage, as you can see, changes, which we can see in the multimeter. तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होगा। अगर कम का लगाया वो फूट जाएगा। तो जब आप डिज़ाइन करेंगे बहुत सारा डिज़ाइन है, तो आपने पढ़ा कि कितना ऑप्टिमम साइज हम लेंगे जिससे हमारा ट्रांसमिशन प्रॉपर हो विदाउट एनी डैमेज। माई पीजो इज वेरी क्रिटिकल। पीजो जो होता है वो क्रिटिकल और
प्रकाश यहाँ से आओ, फोटो करता रहेगा हाँ सर। We are basically storing that energy generated all together into this battery, and then we can use it through this light, the output. It's very cost effective and it can be used in several applications, like in railway stations and in malls and in other industrial applications as well. ठीक है. Good morning to all of you. This is our project and the project name is wastewater purify machine. This project is basically working on the waste of the water that purify with the use of the 4-member chambers. First of all, in this project we have 4 chambers. जो इसमें 4 चेम्बर्स हैं. सबसे पहले चेम्बर में आप देखेंगे कि उसमें कोल लगा हुआ है. उस कोल से क्या होगा कि जो पानी हम डालेंगे वो कोल से प्योरीफाई होगा और उससे प्योरीफाई होके वो दूसरे चेम्बर में जाएगा जिसमें हमारी फिटकरी लगी हुई है. उस फिटकरी में एलम जिसे कहते हैं, एलम से वाटर जो होगा जो उसमें अंदर थोड़ा हम कहते हैं सॉल्टीनेस होती है, खराबन होता है, वो मीठा होगा उससे पानी से. और थर्ड मेम्ब्रेन में हमारा जो लगा हुआ है वो मेम्ब्रेन लगी हुई है, यूवी मेम्ब्रेन है ना, यूवी मेम्ब्रेन लगी हुई है जिससे कि वाटर जो होगा हमारा प्योरीफाई होगा. फोर्थ मेम्ब्रेन क्या है बताइए? मेम्ब्रेन फिल्टर. मेम्ब्रेन फिल्टर, फोर्थ मेम्ब्रेन हमारी मेम्ब्रेन फिल्टर जो कि वाटर को प्योरीफाई करेगी एट लास्ट. उसमें क्या होगा कि हम लो TDS से हाई TDS तक उसे लेके जा सकते हैं. तो बेसिकली जो इसमें काम है वो 4 फिल्टर्स का है, 4 चेम्बर्स का है, जिसमें पहले हम कोल का यूज़ करेंगे, सेकंड में हम फिटकर यूज़ करेंगे, थर्ड में हम मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे उसे क्लीन करने के लिए, और फोर्थ में यूवी मेम्ब्रेन जो कि यूज़ होती है बाय द यूज़ ऑफ सोलर पैनल. एंड उससे क्या होगा, जो बेसिकली जो वर्किंग जो प्रोसेस हो रही है वो पंप के थ्रू हो रही है. जो पानी जो पंप हो रहा है वो ऊपर से यहाँ से आप देख सकते हैं जो शाफ्ट है हमारी, उससे पंप होता जा रहा है और नीचे तक ये मेम्ब्रेन जा रही है. आप इसमें किसी भी तरह का पानी हो सकता है, हमारा डर्टी वाटर हो सकता है या कोई गंदा पानी, बारिश का पानी, किसी भी तरह का पानी आप प्योरीफाई कर सकते हैं. बेसिकली ये यूज़ होता है जहाँ पर आप बीचेस में यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे पोर्टेबल है क्योंकि ये राजस्थान वगैरह, रेगिस्तान वगैरह में या दुबई कहीं और जहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती हो, आप किसी भी तरह का पानी यूज़ कर सकते हैं. शीतल जल मिलेगा. ओके हमारा प्रोजेक्ट का नाम है सस्टेनेबल सिटी. जो सस्टेनेबल सिटी जो होता है हमारा, ये जो पूरा इको सिटी, ये जैसे कि ग्रीन सिटी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमेशा सेव करना चाहिए और हमेशा ग्रीन बिल्डिंग होना चाहिए. जैसे कि सर इसमें से एग्जांपल जो भी नेचुरल रिसोर्स है ज़्यादातर इसको कंजर्वेशन करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए. जो भी ज़्यादातर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एग्जांपल, जो रेन से हम लोग पानी मिल रहा है, पानी को एक अच्छे से स्टोर करके रखेगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छे से यूज़ कर सकेगा. और हमेशा हम लोग ये पानी जो वेस्ट नहीं करने के वजह से नहीं करना चाहिए. जो गार्डनिंग जो भी वाटर का यूज़ होगा उसमें यूज़ कर सकते हैं बाद में. और जैसे कि जो सस्टेनेबल सिटी जो है ये इको सिटी जो सोशल ये डिज़ाइन करता है सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट का. जो भी इन्वायरमेंट है हम लोग ग्रीनरी ज़्यादा बनाना चाहिए, पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए. और जितना भी पेड़ ट्रीज़ लगाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में अच्छा होगा और इसमें पॉल्यूशन फ्री होंगे. जैसे कि आजकल बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है और हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहिए. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेगा तो जैसे कि बाईसाइकिल हो गया, ये पॉल्यूशन फ्री होता है. तो ज़्यादातर बाईसाइकिल यूज़ करना चाहिए. और इसके बाद और इसके बाद ये जो पानी जो हम लोग ये स्टोर करके जो रख रहा है, रेन से स्टोर कर रहा है और उसके बाद एक टैंक में स्टोर करके रखेगा जो फ्यूचर में जब भी हम लोग चाहते हैं उस समय यूज़ कर सकते हैं. जब पानी की कमी होगा, बहुत सारा सिटी में या पानी बहुत कम मिलता है, तो अगर हम लोग इसको अच्छे से यूज़ करेगा तो इरिगेशन में भी यूज़ कर सकता है. और
Today I present my robot, Android Military Spying and Bomb Disposal Robot. एक्चुअली इस रोबोट को मैंने डिज़ाइन किया है इस प्रॉब्लम को देखते हुए कि जब हमारे मिलिट्री कोई एक अननोन प्लेस पे जाती है या अननोन टेरिटरी पे जाती है तो एक्चुअली उसे कुछ पता नहीं होती है कि उस टेरिटरी में क्या है या फिर वहाँ पे क्या सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर लैंड माइंस हैं या फिर उसके अंदर कोई बॉम्ब वगैरह लगा हुआ है। तो उसमें क्या होती है कि हमारे जब कन्वेयर निकलती है मिलिट्री की तो अचानक से सडनली हमारा आईडी ब्लास्ट हो जाता है और बहुत सारी कैजुअलिटी होती है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को देखते हुए इसकी सॉल्यूशन के लिए इस रोबोट को बनाया है। ये रोबोट सबसे पहले उस एरिया में जाएगा और पूरे एरिया को स्कैन करेगा। इसमें एक्सरे स्कैनर लगा हुआ है, एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर्स लगा हुआ है, IR सेंसर लगा है, PIR सेंसर लगा है, जिसमें कि एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर्स जो हमारी बॉम्ब होगी उससे जो हमारी रेडिएशन इमिट्स होते रहेगी उसको डिटेक्ट करेगा और हमें कमांड सेंटर को कमांड भेजेगा कि हमने यहाँ पे बॉम्ब डिटेक्ट किया है। फिर मैनुअली हम कमांड सेंटर से वहाँ डायरेक्टली हम इसको कमांड देंगे और उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर इसके कोई मिलिट्री सिक्योरिटी थ्रेट कोई अगर कीचड़ में फंसा हुआ है लेकिन अगर उसको IR सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए इसमें हमने यहाँ पे एक PIR सेंसर यूज़ किया है जो कि ज़मीन के अंदर या फिर मड के अंदर भी अगर कोई मिलिटेंट दैट मीन्स टेररिस्ट वहाँ पे छिपा हुआ है तो उसके जो बॉडी से रेडिएशन इमिट्स होती रहेगी तो हमारा ये PIR सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा और हमारे कमांड सेंटर में भेजेगा और कमांड सेंटर उसको कमांड देगी कि अगर ऐसे हमें शूट करना है तो शूट करेंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अचानक से अगर हमारी मिलिट्री ही इसके सामने आ जाएगा तो ये कैसे पता करेगा कि ये मिलिट्री है या फिर कोई टेररिस्ट है। तो उसके लिए हम हर एक मिलिट्री के ड्रेस पे एक स्पेशल बारकोड या फिर एक स्पेशल चिप लगाएंगे जिससे कि वो उसको स्कैन करके पता कर पाएगा कि ये आदमी मेरा है, अदरवाइज़ ये मेरा नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट का जो बेसिकली इंटेंशन है वो है कि कैसे हमारा वुमेंस विक्टिम को कम किया जाए, मिलिट्री कैजुअलिटी को कम किया जाए। ये हमारा ग्रीपर है, इस ग्रीपर की मदद से हम बॉम्ब को डिफ्यूज करेंगे, उसकी वायर को कट करेंगे। इसमें जो आप ऊपर हमारे एक माइक्रो कंट्रोलर फिट है जिसके अंदर हमारे कैपेसिटर्स, रेसिस्टर्स और हमारी नैनो चिप लगी हुई है जिसमें हमारे प्रोग्राम एक्सेस हैं और इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है जो इसको सोर्स दे रहा है चलने के लिए। बाकी इसमें जो हमारे एक सेंसर्स वगैरह यूज है। हो गया। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, दिस इज़ माय प्रोजेक्ट एंड दिस प्रोजेक्ट नेम इज़ रिवर्स वेंडिंग मशीन। बेसिकली रिवर्स वेंडिंग मशीन का काम क्या है कि बॉटल को कलेक्ट करना और फर्दर प्रोसेस में इसको रिसाइकिल करना। तो ये आइडिया कहाँ, बेसिकली आइडिया हमारे पास आया कहाँ से? हमने जब रिसर्च किया तो हमने पाया कि हर सेकंड में 1500 बॉटल इधर उधर फेंकी जा रही है। तो वहाँ से हम लोगों ने इसको मोटिवेशन उठाया और इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। और ये हमारे टीममेट है दीपांशु जी, हर्षित देवल, इशित पॉल और अनंत, हम लोगों ने मिलकर इस पर काम किया। और रिशु राज और भी है जो अपसेंट है आज के दिन। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली काम क्या है, जो वेस्ट बॉटल है उनको कलेक्ट करना, फिर इस सेंसर पे जाना, ये अपने आप इसको डिटेक्ट करेगा। फिर इस बॉटल को अंदर हम लोगों ने डाल दिया तो जब बॉटल डालेंगे तो हमको कुछ रिवार्ड मिलेगा, वो रिवार्ड यहाँ से आएगा इस तरह से। टोटल 8 सेकंड का सर। So it's only plastic board or if I throw a stone or something, can it how? वही
डिटेक्ट कर लिया, फिर कॉइन दीजिए, स्टोन पे कॉइन दीजिए, अगर स्टोन हमने जो आईआर सेंसर लगाया है तो उसके पास से जाएगा, उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, माइक्रो कंट्रोलर रिसीव नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड देगा नहीं। ये हमारा काम है, फंक्शन है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फॉर एग्जांपल में रेलवे स्टेशन पे बैठा सकते हैं, बस स्टैंड पे, बीचेस पर, ऐसे बैठा यहाँ पर हम लोग इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर फर्दर फ्यूचर स्कोप में क्या क्या है कि जैसे अभी हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, तो हम इसको सोलर सिस्टम लगा कर भी चला सकते हैं। उसके बाद इसमें हम जो अभी प्लास्टिक बॉटल का यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम केन के लिए अलग बना सकते हैं और ग्लासेस बॉटल के लिए भी अलग बना सकते हैं। इसके लिए फर्दर फ्यूचर स्कोप में हम इसको ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और इस बॉटल को हम लोग रिसाइकल करके बेच सकते हैं, जिससे हम पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली जो हमारा जो मेन काम है, प्लास्टिक बॉटल के जो वेस्टेज इधर उधर फेंका जा रहा है उसको कम करना, पॉल्यूशन को रोकना, हमारा ये बेसिकली हमारा ये काम है। और हमारे फिलहाल 2 दिन पहले हमारे कोलपुल पे क्वेश्चन भी आया था कि हम प्लास्टिक बॉटल को कैसे कम कर सकते हैं, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है हमारे पास, हम इसके थ्रू इसको कम कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। This is a Standard-B spy robo and it is based on a Theo-Jensen mechanism. Theo-Jensen mechanism is discovered by Theodorus Jensen, who is a Dutch artist. This mechanism is a planar-like mechanism and it has 11 bar linkage and 1 degree of freedom. This robot mimics the motion of a spider. It makes use of 2 DC motors, where the DC motors runs the gears and the gears in turn runs the leg for the motion, and it is controlled by wireless remote control, and it can be used for spying, like in war fields it can go and detect metals. It can be also used in for archaeological purposes. And even in sci-fi movie sets. Saurabh and I am from electrical second year and double branch। तो ये हमारा ब्लेडलेस विंड टरबाइन है, जो मतलब बिना किसी मूविंग पार्ट, बिना किसी रोटेटिंग पार्ट्स के विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें सबसे पहले ये जो हमारा मस्ट है, सबसे पहले एयर जो है हमारे मस्ट से आगे टकराती है। जब ये मस्ट से आगे टकराती है, हर एक मटेरियल की अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होती है। एयर की फ्रीक्वेंसी जब मस्ट की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है तो वो हमारा ऑसिलेट कर, जब इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है एयर की फ्रीक्वेंसी से, तो ये ऑसिलेट करने लगता है और रेजोनेंस कंडीशन में चला जाता है। तो यहाँ पे हमने इसके बॉटम में मैग्नेट कनेक्ट किए हैं जो हमारे आयरन कोर की सरफेस पे टच हैं। तो जब ये ऑसिलेट करता है, ये मैग्नेट जो है आयरन कोर पे रब करते हैं। रब करने से जो है फ्लक्स प्रोड्यूस होता है आयरन कोर में, और आयरन कोर हमारा जो है हमारा कनेक्टेड है अपनी कॉपर कोयल से, तो उसमें जो हमारे एक EMF इंड्यूस्ड होता है और AC करंट फ्लो होता है। उस AC करंट को हम डायरेक्टली लोड के साथ कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने डायोड और रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया जिसे AC टू DC कन्वर्ट कर रहा है। उसको बाद में हम बैटरी में स्टोर करके लोड से कनेक्ट करके किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को। ये हमारी टीम डैप्स है, ठीक है। ये टीम मेंबर्स हमारे मनीषा, रिक्शांत, मैं शुभांकर और ये प्रियंका और पीछे निवेश। ये आर्म वर्क है, ये हमारी जो ये है इसकी नाम हमने रखा आर्म वर्क। ये एक रोबोटिक आर्म है जिसे हम एक ग्लव से कंट्रोल करते हैं। ये ग्लव्स है, इससे हम लोग जैसे जैसे इस ग्लव्स की मूवमेंट होगी वैसे उससे ये कंट्रोल होती है। इसे हम ऐप से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। आफ्टर अ सर्टेन डाटा, जैसे कुछ डाटा हमारे पास आ जाएंगे उससे हम इसे ना सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं। सेल्फ ट्रेन हो जाएगी उसके बाद ये ऑटोमेटिक वर्क करेंगे। ये इसके एप्लीकेशन बहुत जगह आ सकते हैं, जैसे लॉजिस्टिक वगैरह में आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक में, वहाँ इनकी एप्लीकेशन है। और एक सबसे बेस्ट एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली अगर हम लोग जा रहे हैं तो मेट्रो स्टेशन क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड चेक करते हैं, हमें स्कैन करते हैं
मेट्रो गेट पे, तो वहाँ पे अगर ये हम लोग डाल देंगे ना, तो वो जो बोरिंग जॉब रहती है उन पर्सन की, तो वो एकदम ईजी हो जाएगी और वो एक स्मार्ट वे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ एक ये बेस्ट एप्लीकेशन आ सकती है। बाकी ये डेवलपिंग फेज में है, इसका और फीचर आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ये हमारी ऐप है, इससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ हम लोग इसको डिग्री पे चेंज करेंगे वहाँ ये कंट्रोल होती जाएगी। और ये हमारी इंटरचेंजेबल है, इसे रिमूव करके हम कुछ और भी इस पर लगा के अटैच कर सकते हैं। जैसे ये हो गई, अब इसे हम ये यहाँ पे अटैच कर दिया, तो ये अब हमने इस पे दूसरा अटैच कर लिया, तो ये ऐसे चेंज कर करके हम लोग इसे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं बस। और ब्लूटूथ से ये सिंगल भेज रही है यहाँ पे, और ये उससे रिसीव करके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। बस इतना ही है। Hello everyone, my name is Chandra Narayan Shah. He is Naveen Regmi and one of my friend Chandan Thakur. We are planning sewage treatment plant. तो उसमें हम लोग जितना सीवेज वाटर होता है उसको हम क्लियर करने के लिए एक ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें एक रिसीविंग टैंक होता है। उसमें जितना सीवेज होता है उसको रिसीव करने के लिए रिसीविंग टैंक इधर लगा है। उसको हम उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में जितना लार्ज पार्टिकल है उसको क्लियर आउट करते हैं स्क्रीन के हेल्प से। उसके बाद ग्रिड होता है, ग्रिड में जितना ग्रिड मटेरियल होता है जैसे गिट्टी बालू वो सब सेपरेट आउट करते हैं। उसके बाद स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग में जितना ऑयली सब्सटेंस होता है, जितना फैट सब्सटेंस होता है उसको स्किन आउट करते हैं बाय द एब्जॉर्बर। उसके बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है, प्राइमरी सेडिमेंट जितना सेडिमेंट्री पार्टिकल्स होता है उसको सेपरेट आउट करते हैं। इसको करने के लिए कमती में 10 से 12 घंटा कमती में चाहिए सेपरेट। जो बाकी स्लज होता है उसको नीचे निकाल देते हैं। उसके बाद ये एरिएशन टैंक हो गया। एरिएशन टैंक में कंटिन्यू एयर सप्लाई होता है जिसके कारण से एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, जो कि फ्लक्स जनरेट करता है। जो फ्लक्स जितना ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है उसको डिकम्पोज करता है। उसके बाद जितना बाकी स्लज हुआ उसको नीचे आउट कर देते हैं। उसके बाद होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में जितना सैंड पार्टिकल्स है उसको सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद फिल्टर हो गया। Hello, good evening. My name is Vibhor Kumar and these are my teammates Shubham, Sagar and Saurabh. We have presented our Technomax and our project is detachable electric power tricycle cum wheelchair for specially abled person. In this project what we have done is we have attached 48 watt motor to 48 watt battery
In our project, what is our specialty is it is a wheel, it is a detachable concept, which means that it can be used as an electric machine or it can be used as a conventional wheelchair. Our advantages from the conventional wheelchair that are available in the market are it is very cost effective, the maintenance cost is very low, and it serves two purposes. That's all. Thank you. सारे लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सारे फैकल्टी की सोच में Again, Ayush Pandey. Why don't of it, sir? One is can be spy
आगे बढ़ा। तो नहीं रहा